So in last class, we have understand how to calculate the mean by if you have a discrete series and individual series. So how can we calculate the mean? So we have solved two example. Example first and second. Example first is related to the individual series, and example second is for the discrete series. So in this lecture, we have understand how to computation of mean for group data or continuous frequency distribution. Means if your data is in continuous frequency distribution, means if your data in continuous or in the data in the interval, then we have used this formula. So in this, first of all, what we are doing, 1 minute. Okay, so this is the formula. Here we have used this formula for calculation of of continuous frequency distribution. Okay, if in this formula fi, you know very well what is the fi is the sum of the frequency. What is the f is the frequency. The capital N, you know, it is the summation of frequency. So the new variable is xm. What is the xm? Xm is the midpoint of each class or category. Means you have a many class, so in each class, midpoint of each class or category, it is known as the xm. Okay, how can you calculate? I think all of you know how can we calculate the midpoint. Midpoint is the lower limit plus upper limit divided by 2. It is a formula for midpoint we have seen in last in frequency distribution. Lower limit plus upper limit divided by 2. So in this, the only one formula is solving the mean for the group data is called the midpoint method. What we have called this method is known as the midpoint method. In this x, whatever x you have, we have taken is the mid value of the corresponding class. Okay, यहाँ पर लास्ट में हम क्या ले रहे थे, x का जो था वही ले रहे थे, बस here x in the interval में define है 10 to 15. So we have take the mid value of this. How can we calculate the mid value? Mid values we have calculate lower limit plus upper limit divided by 2. It is known as the mid value. So we have take one example. Suppose calculate the mean of the marks from the following table. We have a marks zero. मिड वैल्यू का फॉर्मूला क्या होगा? Yes. लोअर तो अपर. जैसे 10 to 15 है, तो लोअर लिमिट क्या हुआ 10, अपर लिमिट कितना हुआ 15. 10 plus 15 डिवाइड बाय 2. यही होगा ना मैम फॉर्मूला? हाँ हाँ, यही फॉर्मूला हो गया ना, लिखा ना मैंने यहाँ पे. ओके मैम, देखा नहीं है मैम. ओके, नो प्रॉब्लम. सो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 and 50 to 60. So 0 to 10, how many students have got? 12 students have got the marks 0 to 10. 18 students have got the marks 10 to 20. 27 students have got the marks 20 to 30. So on 6 students have got the marks 50 to 60. So यहाँ पर x का वैल्यू किसमें? The value of x is in interval. Interval में we have value. The interval is same. यहाँ पर 10 का difference है. So the interval is same. So we have take the mid value. Mid value how can we calculate? 0 plus 10. 0 plus 10 is 10. 10 divided by 2. It is 5. 5. So we have take the difference is 10. 10 का एवरेज चलेगा, जैसे 5 निकल गई तो 15 हो जाएगा, 25 Yes. तो 35. Yes. Okay. यहाँ पर we have take the 10. यहाँ पर जितना मैं जितना क्लास इंटरवल का है ना गैप रहेगा, जितना ही है ना मैम मिड वैल्यू करेगा. जी, यहाँ पर जितना भी आपका गैप आ रहा है, यहाँ पे आपका साइज का डिफरेंस कितना आ रहा है? वी हैव टेक द साइज ऑफ इंटरवल इज 10. सो वी हैव टेक द डिफरेंस ऑफ इंटरवल 10. सो 5, 15, 25, 35, 45. अंडर सच केस व्हेन योर क्लास इंटरवल हैव अ सेम इंटरवल, आपके यहाँ पर जो भी इंटरवल वी हैव डिफाइंड, अगर सेम इंटरवल वी हैव डिफाइंड, देन वी हैव टेक द सेम डिफरेंस 5, 15, 25, 35, 45. ओके मैम. सो ओके. So what is the formula? Formula is the summation of f. Here I am not writing fi xm divided by capital N. So what is the capital N? Capital N is the sum of the frequency. It is the sum. Sum of the frequency is 100.
sum of the frequency here I am writing it is 100. Then what we want to find fi xm. So first of all we multiply f को xm से multiply करेंगे, then we have take the sum. So f multi ये हमारा f है, ये हमारा x है, तो f multiply x, 12 multiply 5 60, 18 multiply 15 270, 270 multiply 25 it is 675, 20 multiply 35 it is 700, and 17 multiply 45 765, and 6 multiply 50. So first of all we have multiply, सबका multiply करेंगे, then we have take the sum of, then we have take the sum, then the sum of this series is 2800. The sum of this series is 2800. So 2800 divided by 100. So the mean is 28. Means on an average marks कितना मिल रहा है student? So it is 28. Yes, this question is clear all of you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, Vinay, it is clear? Yes, ma'am. Okay. So here we have understand the properties of arithmetic mean. So the first property is this: algebraic sum of the deviation. Deviation means difference. Okay, now I think all of you know what is the meaning of algebraic sum of the deviation of a set of value from their arithmetic mean. Means it is a set of value. It is your कहाँ से ले रहे? Mean से the difference from mean we have taken. The sum of this is always 0. Summation I goes to 1 to 1 fi. If frequency is given, then fi xi minus x bar is always 0. Okay, means algebraic sum of the deviation of a set of value from the arithmetic mean is always 0. The first property is this is always 0. What when you have calculate xi minus x bar, xi को x bar से minus करेंगे, then you have take the sum. So sum is always 0 आएगा आपका. Okay. And second property, what is the sum of this? मैं एक मिनट एग्जाम्पल दे के समझा दो ना ये वाला. एग्जाम्पल तो मैंने लिया नहीं है, बट आई विल, चलो यहीं से देख लेते हैं. सपोज यहाँ पर है हमारा इन दिस, सपोज ये तो लेंथी हो जाएगा थोड़ा हियर. ओके, यहाँ कैलकुलेट कर देते हैं हम. एक्स है, एफ है, चलो ये भी लेंथी हो जाएगा, ये ले लेते हैं, ठीक है. ओके, एफ है समेशन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार था. ओके, तो सबसे पहले व्हाट वी वांट टू फाइंड एक्स आई माइनस एक्स बार. यहाँ पे वो हम फाइंड करते हैं. तो ये कितना आ रहा है? एक्स बार कितना आ रहा है? मीन कितना आ रहा है हमारा? मीन इज 4.09. मीन कितना आ रहा है? 4.09. व्हाट इज द वैल्यू? ये कितना आ रहा है? ये 4.09 आ रहा है. यस सर, ये 4.09 आ रहा है. यहाँ क्या एक्स आई है, तो आई का वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करेगा? आई का वैल्यू इज लाई बिटवीन 1 to 7. एक्स का वैल्यू कितना? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है. तो एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करेगा? 1 to 7. तो सबसे पहले मैंने 1 लिया, तो 1 minus 4.09 कितना हुआ? इट इज 3.09. यस मैम, इट इज 3.09. देन वी हैव टेक 2 है, तो 2 माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये तो कांस्टेंट है, 2.09. ये 2.09. माइनस प्लस का ध्यान रखना. ओके, तो इट इज माइनस, इट इज आल्सो माइनस 2.09. देन वी टेक 3 लिया, तो कितना है? माइनस 1.09. देन 4 लिया, तो माइनस 0.09. यस मैम, यस, इतना हुआ. यहाँ पे 5 लिया तो कितना आया? प्लस 1.09. प्लस 1. ये माइनस का है, ये प्लस का आएगा यहाँ पे, तो इट इज कैंसिल आउट. माइनस प्लस करेंगे तब. यस मैम, सो यहाँ पे 6 लिया हमने, 6 है, 6 माइनस 4.0, तो 2 पॉइंट समथिंग आया. ये इससे कैंसिल आउट होगा. यहाँ पे 7 लिया, 7 कितना आएगा? 3 पॉइंट समथिंग आएगा, पॉजिटिव आया, तो ये इससे कैंसिल. तो हमारे पास कितना बचा? हमारे पास सिर्फ एक वैल्यू बची है यहाँ पे. कौन सी? जो हमने 4 से माइनस किया था. ठीक है, 4 माइनस 4.09, तो 0.09 है. ये इसका डिफरेंस 0.09 है. व्हेन वी हैव टेक द मतलब सम
whole number means ये 4.09 है, so we have convert in almost 4. It is equal to 4. Yes or no? Yes तो ma'am. 4 minus 4 it is 0. Okay, यहाँ पे 4.09 है, तो मीन ये 4.09 है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव कन्वर्ट इन द होल नंबर, देन वी हैव टेक द डिफरेंस, तो ये 4 minus 4 इट इज 0 हो जाएगा. तो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कि जब भी हम इसका मीन से डिफरेंस लेते हैं, जो भी ऑब्जर्वेशन है xi minus x bar, it is always 0. Okay. Then second property is what? The property sum of square of the deviation of a set of value is minimum when taken about mean. Means जब हम इसका स्क्वायर लेते हैं i equals to 1 to an fi xi minus x bar is minimum at mean. जब हम मीन के थ्रू इसको फाइंड करते हैं, मीन्स यहाँ पर जो हम मीन ले रहे हैं ना, तो जो भी नंबर आएगा ये मिनिमम आएगा. कैसे कंपेयर करेंगे? यहाँ पर एक बार हम मीडियन लेंगे, तब it is maximum. Okay, what is the property? Sum of the square of the deviation of a set of value is minimum when taken about mean. तब हम डिफरेंस कहाँ से लेंगे? मीन से डिफरेंस ले रहे. मीन से डिफरेंस लेते हैं तो इट इज द मिनिमम व्हेन वी हैव टेक द डिफरेंस फ्रॉम मीडियन. यहाँ पर अगर हम मीडियन फर्स्ट ऑफ ऑल भी फाइंड, जैसे हमने मीन फाइंड किया, जैसे हम मीडियन फाइंड करेंगे सेम. तो व्हेन वी हैव टेक द डिफरेंस फ्रॉम द मीडियन देन इट इज मैक्सिमम होता है. ओके, Ma'am, what is the value of x bar? x bar is depend on the question. x bar is the mean of the series. जैसे आपके पास कोई सीरीज है 1 2 3 4 5 7, ये आपका इंडिविजुअल सीरीज है. सपोज मान लीजिए आपके पास डेटा 1 3 5 7 आपके पास डेटा है. देन व्हाट इज द मीन? आप इसका मीन फाइंड करेंगे. इट इज द मीन. ये x बार है, इट इज द मीन. व्हाट इज द xi? xi क्या होता है? ऑब्जर्वेशन. ऑब्जर्वेशन कितना? 1 3 5 7. First time we have take the 5, second time we have take 3, third time we have take 5, then fourth time we have take 7. x bar क्या? x bar is the mean. ये जब भी ऐसे नोटेशन आता है ना स्टूडेंट, ये it is known as the mean of the series. It is the notation for the mean. ये mean के लिए notation होता है always. Okay? अरे say yes या no? Yes, X ma'am. बार तो भी मैम, एक्स बार तो वही हो गया ना जो आपने लिया था 4.09. हाँ, ये x बार सपोज वहां पर जो हमारा सीरीज है उसमें कितना था? x बार इज 4.09. यस, तो ये x बार क्या होता है? ये तो 4.09 हो गया अकॉर्डिंग टू दिस दैट क्वेश्चन. अब उसी क्वेश्चन का अगर हम मीडियन फाइंड करेंगे, देन वी हैव फाइंड द मीडियन. इन नेक्स्ट क्लास वी हैव अंडरस्टूड हाउ कैन वी फाइंड द मीडियन. हम उसका मीडियन फाइंड करेंगे. मीडियन फाइंड करने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल वी सो xi माइनस x बार, पहले उसको मीन से माइनस करेंगे, फिर उसका सम कैलकुलेट करेंगे. तो वी हैव गॉट सम वैल्यू, हमें कुछ मिलेगा यहाँ पे. फिर हम सेम प्रोसीजर यहाँ पे मीन लिखा ना, फिर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? मीडियन लिखे. मीडियन जब लिखेंगे तो हमारे पास जो क्वांटिटी आएगी ना वो मैक्सिमम आएगी. मतलब मीन से उसका कंपेयर करेंगे, ये मिनिमम होगा, ये मैक्सिमम होगा. यस मैम. Okay, then third point is this mean of composite series. Composite series means it is the not a property but it is the one type of quotient when you have brought. Suppose you have a two series, means आपके पास A है और B है. Okay, suppose मान लीजिए ये BB फर्स्ट ईयर है, ये BB सेकंड ईयर है. Okay, then I want to calculate the, या ऐसे मान लीजिए चलो BB फर्स्ट ईयर से लेके चलते. It is the mathematics. It is business mathematics subject and it is business statistics subject. I want to calculate the average marks of both the subject. Means दोनों मार्क्स में एवरेज मार्क्स कितना आ रहा दोनों सब्जेक्ट को मिला के. तो यहाँ पे मेरा ये फर्स्ट सीरीज हुआ, इट इज माय टू सेकंड सीरीज. मुझे इनका कंबाइंड मीन फाइंड करना है. तो हाउ कैन वी फाइंड द कंबाइंड मीन? फाइंड करने के लिए ये जो आएगा, इसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने होंगे? n1. इसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n2. वी हैव सॉल्व, वी हैव टेक द एग्जांपल. सो x बार हाउ कैन वी कैलकुलेट? n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार nk. मींस ऐसा नहीं है कि सिर्फ वी हैव ओनली टू सीरीज a और b. सपोज c d आपके नंबर ऑफ पेपर कितने चलते हैं? 5 6 e f. सपोज वी हैव a 6 सीरीज. वो 6 सीरीज का मुझे कंबाइंड मीन निकालना, एक साथ मीन निकालना कि ऑन एन एवरेज कितना मीन आ रहा है. तो हाउ कैन वी सोल्व? n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार प्लस nk xk बार.
divide by n1 plus n2 plus nk. What is the n1? n1 क्या है? n1 is the number of observation in series A. n2 क्या है? Number of observation in series B. What is n3? n3 is the number of observation in C. Okay. So what is the x1 bar? x1 bar क्या है? The average mean of series A. What is x2 bar? Average mean of the series B. Yes, it is clear. What is the meaning of this mean of composite series? Means you have a more than one series. अभी जैसे इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या था, जैसे मैंने यहाँ फाइंड किया, सपोज ले लीजिए यहाँ पे मेरे पास एक ही सीरीज था. यस, आई हैव ओनली, यहाँ पे मैंने मैथमेटिक्स लिखा ना, सपोज यहाँ पे मेरे पास y है, ये मेरे स्टैटिस्टिक्स के मार्क्स हो गए. तो वी हैव राइट नाउ वी हैव टू सीरीज. यहाँ पे मैं उसके करस्पॉन्डिंग कुछ मार्क्स लिख दूंगी. So it is my first series, it is my second series. So number of observation in this series, it is known as the n1. यहाँ पर n1 नाम दे दिया, जहाँ जैसे I am writing ना n, so I am just given the नाम n1 and y है, तो it is the नाम, ये second series है, I am given the name of n2. So first of all I am just find the mean of this series. इस series का मैंने mean find किया, तो कितना है 15.2 x1 bar. I am just give the x bar. अब मैंने यहाँ पर जो सीरीज हुई स्टैटिस्टिक्स का, उसका मीन फाइंड किया, वो हो गया मेरा y1 बार. तो ये क्या हुआ, ये n1 हुआ, ये n2 हुआ. तो वी हैव जस्ट अप्लाई एंड मैम कुछ समझ में नहीं आया, थर्ड वाला मेरे को बिल्कुल भी नहीं समझ में आया. नहीं समझ में आया? नहीं मैम. अरे एक मिनट रुको ना. मीन ऑफ कंपोजिट सीरीज मींस आपके पास टू Ma'am, at सब्जेक्ट first है. you will send the PDF. The Okay. First of all, you understand. Okay, na? I will send you. I think I already upload on the Google Classroom. You just check. Okay. So M is the mathematics, S is statistics. हम दो लेके चल रहे हैं अभी, सिर्फ दो वेरिएबल. ये मैथमेटिक्स में है, ये S के स्टैटिस्टिक्स है. आपको फर्स्ट ऑफ ऑल मैथमेटिक्स को मैंने क्या नाम दे दिया, ये मेरा वन रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ वन मैथमेटिक्स. H2 ये जो बेस में ना 2, इट इज नॉन एज द स्टैटिस्टिक्स. तो मुझे पहले n1 है, m1 में सपोज मैथमेटिक्स में आपके एवरेज मार्क्स, मुझे 3 स्टूडेंट है, 1 2 3 स्टूडेंट आई हैव. तो उनके मार्क्स मैंने लिख दिए. 10 में से 10 आए फर्स्ट के, सेकंड के 9 आए और 8 आ गए. ओके, ये मेरा मैथमेटिक्स का है. तो n1 कितना है, n1 1 2 3 ऑब्जर्वेशन है. तो वैल्यू ऑफ n1 कितना हुआ 3, मल्टीप्लाई किससे मल्टीप्लाई करना है, x1 बार. x1 बार क्या होगा, इसका मीन निकालूंगी मैं. तो इसका मीन कितना आ रहा है, 10 प्लस 9 19, 19 प्लस 8 कितना हुआ 27. यस मैम. 27 डिवाइड बाय 3 कितना है, 27 डिवाइड बाय 3 9. ये मेरा ये हुआ. देन प्लस, अब मैं प्लस कर दूं. अब प्लस में क्या n2 में ऑब्जर्वेशन मेरे पास 3 है, ऑब्जर्वेशन सेम है 3, सपोज 3 है. और मार्क्स कितने लिख दिए मैंने कि उसके फर्स्ट वाले के 9 आए, सेकंड वाले के 7 आए, थर्ड वाले के 8 आए. चलो 8 ले लेते हैं. ओके, तो n2 भी मेरा 3 हो गया यहाँ पे. मल्टीप्लाई 9 प्लस 7 प्लस 8 कितना हुआ 24. 24 डिवाइड बाय 3 कितना हुआ 8. तो 3 मल्टीप्लाई बाय 8 देन डिवाइड बाय कितना n1 प्लस n2. n1 भी 3 है मेरा और n2 भी 3 है, तो 3 प्लस 3 इज 6. तो 3 मल्टीप्लाई 9 27 प्लस 24 डिवाइड बाय आई एम जस्ट डिवाइड बाय 6. तो कितना है 27 प्लस 24 करके बताओ कितना आ रहा है 51 divided by 6. It is your mean of the composite series. Means ये 51 8.3 आ रहा है. ओके ठीक है 8.3. ओके, तो इट इज द मीन ऑफ, आपके पास 2 सीरीज था, सीरीज 1 स्टैटिस्टिक्स मार्क्स, सीरीज 2 मैथमेटिक्स मार्क्स. अगर आपके जैसे कोई 2 सीरीज आपके पास है, उस 2 सीरीज का आपको कंबाइंड मीन निकालना, कंबाइंड मीन, तो यू हैव अप्लाई दिस फॉर्मूला. ओके. Yes, student, it is clear.
हेलो, Yes, ma'am. आप समझ में आ गया ना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस फॉर्मूला? मींस आपके पास अरे यहाँ पर तो हम सब इन दिस एग्जांपल वी हैव ओनली वन सीरीज, यहाँ पर भी एक ही सीरीज था। अरे मेरे पास दूसरा सीरीज भी है, तो हाउ तो कैन मैम वी फाइंड? वन हो यस, तो मैम वन सीरीज अपने पास, तो वन के हिसाब से निकल जाएगी ना मैम। तो मैं यही कह रही हूँ कि आपको जो भी फर्स्ट सीरीज है, ये फर्स्ट सीरीज है, तो फर्स्ट सीरीज में क्या है, वन जो भी वन होता है ना, बेस वन है, मतलब ये फर्स्ट यस सीरीज के सर। बारे में बात कर रहा है। बेस टू है तो सेकंड सीरीज के बारे में बात कर रहा है। और अगर ये बेस है थ्री मतलब होगा तो थ्री होगा तो थर्ड सीरीज भी हो जाएगी। जैसे यहाँ पे मैंने मैथमेटिक्स लिया, स्टैटिस्टिक्स लिया, सपोज सीरीज थर्ड मेरा इकोनॉमिक्स है, देन यस इट इज मैम आ योर गया। सीरीज थर्ड। यस, इट इज ओके क्लियर मैम। ऑल ऑफ यू? ओके मैम। यस नवीन, हेलो। यस मैम। yes, it is clear na? Okay, so then what is the merit and demerit of arithmetic mean? हमने arithmetic mean तो find कर लिया, तो what is the merit? merit क्या है? first merit it is very easy to compute, मतलब इसका calculation बहुत easy है, इसमें कोई वो मतलब tough नहीं है कि anyone can calculate the arithmetic mean. then second it is based upon all the observation, means we have take, मतलब हम जितने भी observation हमें given है, we have take all the observation, so it is based upon all the observation. Third, it is easy to understand and easy to calculate, मतलब इसको हम easily समझ सकते हो, easily we can calculate. It measures stability. Mean is not, it is the most stable among the other measures of central tendency because every item contribute to the value of the mean. Means यहाँ पे क्या होता है, all the observation जो होते हैं ना, सारे observation give the, सबका अपना अपना रोल है। अगर मैं एक भी मिसिंग करती हूँ तो आई एम अनेबल टू फाइंड द अरिथमेटिक मीन, सो इट इज अ वेरी स्टेबल मीन। देन व्हाट इज द डीमेरिट? ये तो भाई अच्छी अच्छी बातें हो गई। देन व्हाट इज द डीमेरिट? कुछ भी हो, सबका मेरिट और डीमेरिट तो होता ही है। देन व्हाट इज द डीमेरिट ऑफ दिस? अरिथमेटिक मीन कैन नॉट बी ऑब्टेन इफ अ सिंगल ऑब्जर्वेशन इज मिसिंग। अगर मैंने यहाँ से एक ऑब्जर्वेशन मिसिंग कर दिया, ये मैंने हटा दिया, so I am unable to calculate the arithmetic mean. अगर मेरे पास ये observation नहीं है, so I am unable to calculate the arithmetic mean. Second, arithmetic mean is affected very much by the extreme value. Suppose आपका value क्या, एक 1 है, second value कितना है, 2 है, third value कितना हो गया, third value मैंने 20 ले लिया। यस मैम। तो ये क्या हो गया, अब मैं इसका डिवाइड करती हूँ 3 से, तो 20 प्लस 22, 20 प्लस 1 23, तो 23 आया। 11 आ ये गया मीन मैम इसका। 11 कहाँ से आ गया भाई? 23 है मैम। 23 को 3 से डिवाइड करना है, तो इट इज 7 पॉइंट समथिंग, 7 पॉइंट समथिंग आएगा, 7.6 7.6। 7 पॉइंट समथिंग, तो 7.6। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं आपकी कोई भी वैल्यू 7.6 के नियर नहीं है, एक 1 है, एक 2 और 20 है। सो मीन्स अगर आपके डेटा में अगर कोई एक्सट्रीम वैल्यू है तो ये आपके रिजल्ट को अफेक्ट करती है। मीन्स जो भी आपने कैलकुलेट किया, फिर जो भी फाइंड किया ना, वो रिजल्ट सही नहीं है। मीन्स अरिथमेटिक मीन इज अफेक्टेड वेरी मच बाय द एक्सट्रीम वैल्यू। अगर आप अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करें, उसमें एक्सट्रीम वैल्यू है, तो इट इज मतलब आपका जो मीन आपने कैलकुलेट किया ना, इट इज नॉट अ राइट। मीन्स जो भी आपका रिजल्ट आया, इट इज नॉट अ राइट अगर आपके डेटा में एक्सट्रीम वैल्यू है एंड यू हैव कैलकुलेट द अरिथमेटिक मीन। यस, इट इज क्लियर? Yes, student, it is clear? यस मैम। Yes, Sunny, it is clear? Ma'am, your notes and the PDF that PPT in the Google Classroom. Okay, I will upload. Yes, any doubt? No, ma'am. समझ में आया सबको? Yes, Vinay, it is clear? मैम एक बार वो दोनों और समझा दो मैम, वो कंपाउंड से ऊपर वाले थे ना दोनों, 1 सेकंड वाला। प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन मीन्स क्या प्रॉपर्टी था, ये इसकी प्रॉपर्टी, ये इसका नेचर है, ये बाय डिफॉल्ट है। मीन्स अगर आपके पास अगर ऐसा कुछ आता है कि xi माइनस एच बार, आप ऑब्जर्वेशन को सीधा मीन से माइनस कर रहे हो, सो इट इज ऑलवेज जीरो, ये हमेशा ही जीरो आएगा किसी भी केस में। आप ले लीजिए algebraic sum of the deviation of a set of values
from their arithmetic mean is 0 means 0. जब भी आप मतलब जो भी ऑब्जर्वेशन है उसको आप मीन से माइनस करेंगे तो उनका सम वैल्यू ऑफ फाइंड इट इज ऑलवेज 0 0. और जब आप इनका स्क्वायर लेंगे तो इट इज द मिनिमम जो वैल्यू आएगी मिनिमम वैल्यू आएगी उसका कंपैरिजन किया जाता है मीन्स अगर मैंने यहाँ मीन लिया है तो इट इज द मिनिमम हम मीडियन लेंगे तो इट इज तो द मैक्स मैक्सिमम ओके मैक्सिमम. यस मैम. क्लियर yes clear all यस of मैम. you ओके मैम. yes Naveen have any doubts Yes, ma'am. No worries. clear no clear ask the topic clear so in next class we have start the new topic it is median okay yes all of you Okay, ma'am. Okay, ma'am. मैम okay नेक्स्ट क्लास कर लेना है मैम आपकी. yes, next class कल है so we have Yes, start the tomorrow new topic it is median यस मैम. okay Thank you, ma'am. okay Thank you, ma'am. just start your online test Can you leave the class, ma'am? yes you can Thank you, ma'am. Okay, ma'am. Thank you, ma'am.